Hello, good morning to all. Now, today we have the second part of the sets. Okay, in previous video, we have already studied about the definition of sets, roster form, set builder form, types of sets like empty set, singleton set, finite and infinite sets. Okay, so today we have in that order, first topic is subset. Okay, let A and B are two sets. If every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B. Okay, for example, we have set A is equals to 1, 2, 3. Okay, this is our main set. If I said 1, 1 is the element of this set. This is your set B. Okay, so we can say B is a subset of A because one element is A में contain करता है. But अब हम ऐसा कहें क्या A सबसेट है B का? नहीं, A का one element तो B में contain करता है, but 2 and 3 are not contained in this set. Okay, if A is a subset of B, that means A के सभी elements अगर B set में contain करते हैं, देन इसे हम कहते हैं या इसे हम शो करते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B के थ्रू. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज इफ A is a subset of B, then it write or denoted by this sign. This is A is subset of B. If A is not a subset of B, then A is not a subset of B. We will represent it like that. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट 5. वी नो व्हाट इज एम्प्टी सेट. एक ऐसा है सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स वो हर एक सेट का सबसेट होगा. ओके, सो एम्प्टी सेट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. ओके, नेक्स्ट इज इफ a set has n elements, then the total number of subsets will be 2 raised to power n. अगर किसी एलिमेंट किसी सेट में आपके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस सेट वी हैव 3 एलिमेंट्स, सो 2 raised to power 3, दैट मीन्स 8. वी हैव टोटल 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट. दैट मीन्स इस ए सेट के 1, 2, 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं, इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे. वो कैसे बनते हैं वो हम भी थोड़ा लास्ट में डिसाइड करेंगे, लास्ट में डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, next is power set. The set of all subsets of a set A is called the power set of A, which is denoted by P of A. Power set of A. A के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सब का एक और सेट, उसे हम कहते हैं पावर सेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1, 2. We know according to this formula 2 raised to power 2, because we have 2 elements, that means कि कितने सबसेट्स बनेंगे 2 raised to power 2, that is 4. so इसके टोटल 4 सबसेट्स हैं. तो इन 4 सबसेट्स का एक और सेट which is called power set. ओके, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे कौन कौन से? एक तो 5, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और एक 1, 2 भी तो होगा, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. वी नो दैट. जैसे कि 1, 2, 3, अब एक सेट मैंने बी लिया लाइक 1, 2 एंड 3, तो ऑब्वियसली इसके तीनों एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट इज इक्वल सेट. इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, then the two finite sets A and B are equal sets, that is A is equals to B. अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं A and B इस टाइप से कि A भी B में कंटेन करता है पूरा and B is also containing in A, that is B के सारे एलिमेंट्स A में कंटेन करते हैं and A के भी सारे एलिमेंट्स B में कंटेन करते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब A is equals to B, that is दोनों सेट्स इक्वल होते हैं. Alright, next is universal set. A set that contains all sets
in a given context is called a universal set. Universal set means एक ऐसा set जो सभी sets या किसी एक context के reference में सभी sets को contain करता है, means सभी sets के elements को contain करता है. For example, we have set A is equals to prime numbers from 1 to 10, that is 2 3 5 7. एक set आपके पास है A, that is 2 3 5 7. एक set आपके पास B जिसमें elements हैं 2 4 6 8 10, that is even number elements from 1 to 10. Next is C is equals to 1 3 5 7 जिसमें आपके पास 1 से लेकर 10 तक के सभी odd numbers आ जाते हैं. Okay, if we want to find out the universal set for these three sets, तो हम एक ऐसा set बनाएंगे जिसमें इन सब के elements contain करते हो. So that will be U is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now A is a subset of U, B is a subset of U and C is a subset of U. जितने भी अपने पास set होंगे वो सभी सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स हैव वन एग्जांपल जिससे ये सारे बेसिक फंडास क्लियर होंगे आपके. फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3. ओके, नाउ सबसेट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करें. एक सबसेट हो सकता है इसका 5 बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी नो दैट. So 5 is a subset of this set. 1 भी इसका एक सबसेट हो सकता है, 2 सबसेट हो सकता है, 3 1 2. पहले एक एक एलिमेंट लीजिए, फिर दो दो एलिमेंट्स, फिर 3 3, फिर 4 4 एंड सो ऑन. ओके, सो 1 2 3. नेक्स्ट 2, if we take 2 elements at a time, so 1 2 is a subset of this set, 2 3 is also a subset of this set, 1 3 and lastly 1 2 3 is also a subset of 1 2 3. Okay, so totally we have 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3. Total subsets are 8. 8 हम फिर नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं 2 raised to power n के फॉर्मूला से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. What was that? If any set has n elements, any set have n elements, so total number of subsets will be 2 raised to power n. So इसमें अगर आपके पास 3 elements हैं, so total subsets कितने होंगे, 2 raised to power 3, that is 8 elements. Okay, now what will be the power set of this set? So power set of A is equal to जितने भी सबसेट्स आपके पास बने हैं इस A सेट के, उन सभी को फिर से सेट की फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए. दैट विल बी योर पावर सेट. सो इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप कर्ली ब्रेसेस में यूज़ करते हैं, सो दैट विल बी पावर सेट ऑफ A. Alright, next is if we have A set is equals to 1 2 3 and we have set B that is 2 3 1. So now we can see that 1 2 3 and इसमें भी 1 2 3 exist करते हैं. So A is a subset of B, simple. And we also can see that 2 3 1 अगर B के elements हैं तो ये A में भी contain करते हैं. That means A is a subset of B and B is a subset of A. और ये तभी हो सकता है जब A is equals to B है, that is A is equal to B. But आगे ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में A B और C एलिमेंट्स हैं. अब आपने कहा इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं. नहीं, एलिमेंट्स के नंबर तो सेम होने चाहिए. आगे सेकंड कंडीशन इज एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. अगर आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही होने चाहिए. वन थिंग इज ऑर्डर इज नॉट इफेक्ट्स द सेट, मीन्स किसी भी एलिमेंट्स के ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता. जैसा ही प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं लाइक 1 2 3, तो इसे आप 3 2 1 भी लिख सकते हैं. दैट विल बी द सेम, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मैटर करते हैं सिर्फ. ओके, सो दिस इज अ सबसेट, पावर सेट, इक्वल सेट एंड यूनिवर्सल सेट बेसिक्स. Okay, so
Thank you. Next part will be your operations on set. So see you in the next video. Please share it and subscribe MathSweb. Thank you.